This is the video that I am making 30 days before the exam. We know that you are going to have exam on 18 June, and my agenda for this particular video is to give you an idea that how you should proceed in these next 30 days. ये वाला जो 30 days का period है just before the exam is the most crucial one. See, irrespective of where you are going to clear this exam. Means irrespective कि हमने last 3-4 महीने में क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है, वॉट इज़ रियली मैटरिंग इज़ कि अगला एक महीना हम कैसे प्लान करने वाले हैं. जो इस एक महीने में हम करेंगे दैट इज़ गोइंग टू डिसाइड मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ आवर प्रिपरेशन, राइट. सो what we need to do is we have to make count each and every minute of these next 30 days, and if we are able to do that 100% we are going to clear the exam, and this is the golden opportunity to clear this exam. सी हाउ वी आर गोइंग टू प्लान दिस 30 days. हम इसको 3 फेज़ में डिवाइड करेंगे. फेज़ 1 जो पहला 20 days का होगा, देन द फेज़ 2 जो नेक्स्ट 7 days होगा, एंड द लास्ट 3 days विल बी द फेज़ 3. इन द फेज़ फर्स्ट इज गोइंग टू द इंटेंस वन. इन द व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, माई एडवाइस इज टू यू इज कि ये जो 20 दिन है इसके अंदर जितना भी तुमने लास्ट 3-4 महीने में जो भी स्टडी मटेरियल पढ़ा है वो सारा हमें कवर करना है इन द फर्स्ट रिविजन दैट यू हैव टू डू इन द फर्स्ट 20 days. Then in the next 7 days, most of that, 80% of that we are going to cover in the next 7 days again for the second time. And that 80% ka 80% we are going to revise in the last 3 days again. So how to achieve that? We will divide the 19 subject into three categories. All the 90 subjects we cannot be equals. कुछ subject हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, very strong. Some subject we are okay. Some subjects we do not feel good. So I can say there can be 3 types of subjects, kind of categories: strong, okay, and the weak subjects. Once we know that, we have to write down all these things on paper कि हमारा strong कौन सी category में हमारे कौन से subject है. Then what we are going to do is we are going to decide the study material. जितना कम स्टडी मटेरियल होगा उतना ज़्यादा रिवीजन होगा, एंड मोर द रिवीजन द मोर द आउटपुट यू विल गेट इन द एग्जाम, एंड दैट इज द मोस्ट क्रूशियल थिंग, राइट. सो द 3 main things that you have to have is, one is your notes that is going to be the cornerstone of your preparation. The second is going to be your MCQ book, whichever you are following for last 3-4 months, and then there should be a one-liner book, right. Apart from that, in the next 30 days, I will be sharing some high yield nutshell, we can say, images to you. In that, topic will be covered within 1 minute. So if you want, you can add that in your study material for next 30 days. That will hardly take 2 to 3 minutes of your day, and will complete one high yield topic from that 2 to 3 minutes. So these are going to be your study material for next 30 days. The cornerstone, Anish is saying the cornerstone is going to be the notes, the class notes which you have prepared. Now how we are going to divide our day is, we will use the rule of 6. What is the rule of 6 is, हमारा जो जितना भी स्टडी पीरियड का टाइम होगा, राइट, बिकॉज अब हमारी क्लासेस खत्म हो गई है एंड वी आर इन अ रिविजन मोड. सो व्हाट वी हैव टू डू इज, वी विल डिवाइड आवर डे इनटू 6 पार्ट. जो फर्स्ट 2 पार्ट होगा उसमें हम थ्योरी पढ़ेंगे, 2 डिफरेंट सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2. Right, part 1, part 2. Let's say for example 3 hour for subject 1, 3 hour for subject 2. You will read the theory. Now जब तुम थ्योरी पढ़ रहे होगे उस टाइम पे हमें क्या करना है कि बहुत सारी चीज़ें हमें याद है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमें पता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो हम भूल जाते हैं, दैट यू हैव टू हाईलाइट. यू हैव टू हाईलाइट ऑल दोज इन्फॉर्मेशन विच यू टेंड्स टू फॉरगेट. उससे क्या होगा कि जब हम सेकंड रिवीजन करेंगे तब हम केवल हाईलाइटेड पार्ट्स को पढ़ेंगे, एंड द रिमेनिंग थिंग्स विल बी स्क्रीन पेसिवली. We do not have to put the energy, and we do not have to invest more time. That will be done automatically, subconsciously, right. This is the 2 major part of your entire day should be comprising of. The third thing is, you will do the MCQ of the same portion which you have covered in the theory. The fourth thing that you are going to do is, you will use a one-liner book. और ये one-liner book को हमें कब यूज़ करना है, जब भी हमारे पास कोई एक्स्ट्रा टाइम है. Let's say for example, रात को जब हम सोने जा रहे हैं, when we go to bed, we are not going to fall asleep within 2 minutes. It will take around 10-15, maybe 20 minutes. You open the one-liner book. When you are taking your tea, when you are on very urgent phone calls, when you are going somewhere, traveling somewhere, use that one-liner book. Yes, it has to be handy. It has to be every time with you. You have to have that one-liner book every time with you. The fifth is, as I told you, you have to revise at least. We are going to share some high yield topics with you. Just that will be an image, and that will comprise all the important points for that particular disease or maybe particular topic. Say for example myasthenia gravis. So हम क्या करेंगे, myasthenia gravis से जितने important points है we will write on a page and I will share with you.
So 30-40 images I will share with you. That will be the high yield topics that at least that will hardly take 2 to 3 minutes in a day. The last thing is the most crucial one. That is the sixth part of your entire day. I have put blank. As you can see, I have not written anything. I will come back to this slide and I will tell you that what is this rule of six is, right? What is the sixth part that we are going to do in that. सी नाउ अगला जो क्वेश्चन आता है कि हमें सबसे पहला कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट बाद में पढ़ना चाहिए. मैं व्हाट आई विल सजेस्ट टू यू इज यू राइट डाउन ऑल द 90 सब्जेक्ट्स इन अ ऑर्डर दैट जो सबसे अच्छा आता है ना उसको सबसे पहले लिखो, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला, और जो सबसे खराब आता है उसको सबसे लास्ट में लिखो. एंड स्टार्ट फर्स्ट इन विच यू आर वेरी गुड. पहले उन 2 सब्जेक्ट से चालू करो जिसमें बहुत अच्छे हैं, फिर कम. उससे क्या होगा कि बिकॉज तुम्हें बहुत अच्छा आता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल यू आर वेरी गुड इन फॉर एग्जांपल ऑर्थोपेडिक्स, यू स्टार्ट विद ऑर्थो वन साइड एंड लेट्स से यू आर आल्सो गुड इन पैथोलॉजी, यू स्टार्ट विद पैथो. तो क्या होगा कि बिकॉज यू नो वेरी गुड दैम, यू हैव रिवाइज देम मल्टीपल टाइम्स, तो वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा. एंड विद इन नेक्स्ट 3-4 days you might end up let's say 3-4 subjects and maybe more than that. So you will gain a confidence कि यार 5 सब्जेक्ट हो गए, अभी तो 25 days बाकी है, राइट. सो हमें उन सब्जेक्ट, हमें कोई लेंथी सब्जेक्ट से चालू नहीं करना है. नाइदर मेडिसिन नो सर्जरी, वी डू नॉट हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दैम, क्योंकि अगर उनसे चालू किया तो हमारा कॉन्फिडेंस यही खत्म हो जाएगा. यार 10 दिन हो गए, अभी तो कुछ खत्म ही नहीं हुआ एक भी सब्जेक्ट. सो स्टार्ट विद द स्मॉल सब्जेक्ट एंड इन विच यू आर वेरी गुड. एंड दिस इज हाउ यू आर, एंड अगेन यू हैव टू राइट दैट ऑन द पीस ऑफ पेपर. सो अभी तक हमें क्या लिखना है, हमें जो हमारे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स है, वीक सब्जेक्ट्स है, उसकी कैटेगरी बनानी है. देन वी हैव टू मेक अ क्रोनोलॉजी, सबसे अच्छा कौन सा है, फिर कौन सा है, फिर कौन सा है, राइट. उसके बाद में हमें क्या करना है, हमारा डेली रूटीन कैसा होना चाहिए, हाउ आवर डेली रूटीन शुड बी. सी व्हेन इट कम्स टू डेली रूटीन, हमें हर एक मिनट को प्लान करना है. वी हैव टू प्लान फॉर ईच एंड एवरी मिनट, फॉर ईच डे, फॉर द नेक्स्ट 30 days. कीप माई वर्ड्स, अगर ये सब हमने किया ना 100% यू आर गोइंग टू क्लियर द एग्जाम. सी एग्जाम डिफिकल्ट नहीं है, इट इज़ ऑल अबाउट यूर अप्रोच टूवर्ड्स द एग्जाम. अगर वो सही होगा तो 100% तुम क्लियर करोगे. सी व्हाट अगेन आई विल सजेस्ट यू टू गो फ्रॉम 4 to 9:30. 4 to 9:30 का शेड्यूल होना चाहिए. हम 4 AM पे उठेंगे एंड 9:30 विल गो टू दैट. सो यू विल गेट इफेक्टिवली अराउंड 17.30 hours in a day to study, to plan out all your things. The remaining 6 hours, 6:30 hours is for your sleep in the night time. अगर मॉर्निंग में उठेंगे, दैट इज गोइंग टू बी, उसका जो रिजल्ट आएगा इज गोइंग टू बी वेरी हाई कंपेयर टू द नाइट टाइम्स. मेनी ऑफ यू लाइक्स टू रीड इन द नाइट टाइम, बट व्हाट आई सजेस्ट टू यू इज ऑलवेज स्टार्ट इन द अर्ली मॉर्निंग. दैट इज गोइंग टू गिव यू अ वेरी हाई आउटपुट. अब जो उस 17.50 आवर्स का जो हमें 17 hours 30 minutes का जो टाइम मिल रहा है, उसमें हमें 3-4 घंटे दिन में, दैट इज़ फॉर योर डेली रूटीन एक्टिविटीज़, द फूड एटसेट्रा, एवरीथिंग, द एसेंशियल थिंग्स, एसेंशियल वर्क्स, एंड अगेन 30 to 45 minutes ऑफ अ पावर नैप. दैट इज़ मैंडेटरी दैट यू शुड टेक इन एवरी डे इन द डे टाइम. जब भी हमें लग रहा है, क्योंकि 4 बजे उठेंगे, देन अगेन आफ्टर 10-12 hours you will feel tired. So around 2 o'clock you take a break for 2 to 2:45, then again you restart, right? So this is how we have to plan out our day. अभी प्रॉब्लम आएगा कि मॉर्निंग में इतना जल्दी उठेंगे कैसे. सी व्हाट आई विल सजेस्ट टू यू इज कि जब भी हम मॉर्निंग में उठते हैं, लेट्स से यू स्टार्ट 4 AM, तो उस टाइम पे उठते ही 5-10 मिनट की एक लाइट एक्सरसाइज करनी है. बहुत हैवी एक्सरसाइज भी नहीं करनी, नहीं तो हम वहीं थक जाएंगे, राइट. एक लाइट एक्सरसाइज करनी, लेट्स से 2-3 पुशअप्स कर लिए, और उसके बाद में टेक अ कॉफ़ी और लेमन टी. Again, why I'm saying for lemon tea is because it is having citrus test, so that will stimulate the neurons. That is going to secrete the excitatory neurotransmitter in the brain, and you will be more awake and easy. Your sleep will go away easily. This is what you need to do. Then अवॉइड कैफीन आफ्टर 6 PM, क्योंकि हमें 9:30 को तो बेड को जाना है. वी हैव टू गो टू द बेड टू 9:30, 10 PM को हमें सोना है. सो आफ्टर 6 PM देयर शुड नॉट बी एनी कैफीन, नो टी, नो कैफीन. So that will delay the sleep. Strict no to the social media. That is the most important thing. No Facebook, no WhatsApp, nothing. No Instagram. Right? For the next 30 days, there should not be any social media. No music headset while studying. अभी बहुत सबकी आदत होती है कि म्यूजिक लगा के सुनते हैं कि ज़्यादा कंसंट्रेशन हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है. कुछ नहीं हो रहा है. दैट इज़ जस्ट हम हमारे अपने आप को पागल बना रहे हैं. ऐसा कुछ नहीं होता है कि अगर हम म्यूजिक सुनेंगे तो हमारा आधा ध्यान तो म्यूजिक के वर्ड्स पे चला जाता है और आधी बार हम उसमें खो जाता है, राइट. सो यू शुड अवॉइड दैट. नो नीड टू डू दैट, और ऐसा कभी नहीं करना है. उन सब लोगों से हमें दूरी बना के रखनी है जो कि नेगेटिव बातें करते हैं कि यार इस बार का एग्जाम बहुत डिफिकल्ट आया था, अगली बार का भी डिफिकल्ट आने वाला है, इसके बाद नेक्स्ट आने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है. उन सब से हमें बात ही नहीं करनी. अगले 30 दिन तक जो ऐसी बात कर रहे हैं, हम उससे 30 दिन तक बात नहीं करेंगे. उसके बाद में पॉइंट आता है कि हमें एक टेबल बनाना है
कि उसमें हम वो सब्जेक्ट्स लिखेंगे जो हमारे कंप्लीट होते जाने. आई विल जस्ट गिव यू एन आइडिया दैट हाउ द टेबल विल लुक लाइक. सी say for example, in the first column you will write the subjects which you have completed. Let's say for example today you start your revision और तुमने 2 सब्जेक्ट लिए, ऑर्थो और पैथो. तो ऑर्थोपेडिक्स जो होगा वो तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा. टुमारो इज लेट्स से 16th of May. विद इन मे बी इन अ सिंगल डे यू आर वेरी गुड, यू मे कंप्लीट, और मे बी ऑन 17th यू विल कंप्लीट. सो जैसे ही सब्जेक्ट कंप्लीट होगा हम यहाँ पे लिखेंगे कंप्लीट सब्जेक्टेड की लिस्ट में सबसे पहले ऑर्थो. हमारा लेट्स से 16th of May को खत्म हो गया हमारा ऑर्थो. तो 16 + 7 मीन्स कि बिफोर 23rd of May हमें वापस से एक बार ऑर्थोपेडिक्स को खोलना है, मे बी फॉर 15 minutes, मे बी 20 minutes, राइट. एंड यू हैव टू ओपन दैट नोट्स अगेन. इन बिटवीन व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि उसके बाद पैथो भी खत्म हो जाएगा. लेट्स से पैथो खत्म हो गया 20th of May को. सो बिफोर 27th मीन्स एवरी 7th डे 27th से पहले हमें वापस पैथो को खोलना है. यस, दैट विल बी ओवर कोल्ड डे कि उससे पहले हमें पैथो को खोलना है. तो जो रूल ऑफ सिक्स के अंदर जो छठा वाला पॉइंट खाली रख दिया था रूल ऑफ 6 के अंदर, उसके अंदर मैं ये कहना चाह रहा था कि ये वाला जो पार्ट होगा ये उसके लिए होगा जो हमें उस दिन हमारा कोल्ड डे जिस भी सब्जेक्ट का आ रहा है वो सब्जेक्ट के नोट्स को वापस खोलेंगे और उसमें से वापस पढ़ेंगे. नहीं तो क्या होता है, अभी हम सब्जेक्ट खत्म करते जाएंगे, जब लास्ट में 20 दिन बाद पहुंचेंगे तो जो हमने 20 दिन पहले पढ़ा वो तो आधा वापस से चला गया होगा. तो हमें उसको हर 7वें दिन खोलना है. एंड दैट यू हैव टू राइट इन दैट टेबल कि हमारे ये सब्जेक्ट खत्म हो गए और ये कोल्ड डे आ रही है. अब जैसे मान लो ये ऑर्थो को हमें 23rd को पढ़ना था तो हमने 23rd को पढ़ा, तो नेक्स्ट जो कॉल आएगा दैट इज बिफोर 30th of May, उसको 30th May से पहले पढ़ना है. उसकी जो अगली कॉल आएगी विद इज बिफोर 7th of June, एंड उसकी जो अगली कॉल आएगी दैट इज बिफोर 14th of June. सो ऐसे हमारे सब्जेक्ट की कोल्ड डेज आती रहेगी एंड दैट यू हैव टू रिवाइज अगेन एंड अगेन. The next thing that we need to do is what we are going to do is see, this is what you are going to for next 30 days. Then comes the most valuable day in your preparation, that is the day before exam. अभी क्या होता है, why I am saying it is the most valuable day and you have to utilize this to maximum. The reason is because क्या होता है कि एक तो नेक्स्ट डे एग्जाम का स्ट्रेस होता है कि अगले दिन एग्जाम है, हमें एंजाइटी होने लग जाती है, और दूसरी तरफ से हम ऐसा प्री ऑक्यूपेशन बना लेते हैं कि यार कि हमें अगले दिन फ्रेश रहना है तो हम क्या करेंगे, 5 बजे बाद नहीं पढ़ेंगे, 6 बजे बाद नहीं पढ़ेंगे. ऐसा नहीं करना है, हमें हमारा सेम रूटीन फॉलो करना है. वी विल स्टडी टिल 9:30. सी व्हाट हैपन्स इज कि अगर हम 9:30 तक पढ़ेंगे तो उस दिन जो भी हमने पढ़ा, लेट्स से यू हैव क्विकली ब्रश्ड अप 2 to 3 सब्जेक्ट्स, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि वो उन नोट्स से जो भी क्वेश्चन आएंगे यू कैन ईजिली लोकलाइज देम कि यार ये नोट्स में वहाँ लिखा हुआ है और इसका यही शॉर्ट आंसर है, एंड दैट इज गोइंग टू रेज योर कॉन्फिडेंस लेवल अ लॉट, राइट. तो हमें उस दिन का 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना है. दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट द डे बिफोर एग्जाम. द नेक्स्ट पॉइंट इज what we are going to do on that. We will quickly go through 3 to 4 subjects in which we are very good and which are very highly asked. For example, let's say PSM हो गया, गाइनी हो गया, फार्माकोलॉजी हो गया. हम उसके सारे नोट्स को क्विकली रिवाइज करेंगे जो हमने हाईलाइट किया था, जो पॉइंट्स को हमको भूल जाते थे. सो विल क्विकली गो थ्रू ऑल दीज नोट्स एज मच एज पॉसिबल. जितने सब्जेक्ट कवर कर सकते हैं उतना सब्जेक्ट कवर करने. उसके बाद में हमें वो प्री ऑक्यूपेशन नहीं रखना है कि 6 बजे बाद नहीं पढ़ेंगे, 7 बजे बाद नहीं पढ़ेंगे. नहीं, होता क्या है कि हमें ये पता है कि हमें 6 बजे बाद नहीं पढ़ना है, लेकिन हम सुबह 10 बजे से यही सोच रहे हैं कि 6 बजे नहीं पढ़ना है. पढ़ तो हम दिन भर नहीं रहे, हम केवल ये सोच रहे हैं कि 6 बजे बाद नहीं पढ़ना है, और जैसे 6 बजे बजेंगे हम किताब बंद कर देंगे, राइट. हमने पढ़ा तो दिन भर भी नहीं. सो वी डू नॉट हैव टू दैट प्री ऑक्यूपेशन कि हम 6 बजे बाद नहीं पढ़ेंगे या 5 बजे बाद नहीं पढ़ेंगे एंड दैट. देन कम्स द डी डे, दैट इज द एग्जाम डे. सी यू हैव प्रिपेयर्ड वेल. If you go like this for next 30 days without wasting a single minute, you have prepared well, you are going to clear the exam. You all have that much with you that you are going to clear the exam. तो हमें ये कॉन्फिडेंस हमेशा लास्ट 30 days तक रखना है till the last option you take in the exam hall कि एग्जाम तो क्लियर होने ही वाला है. That is the law of attraction that you have also heard about that will work, right. So हमें हमेशा ये चीज़ दिमाग में रखनी है. उसके बाद में you should reach exam center on time. There should not be hassle इन द मॉर्निंग की लेट हो रहे हैं, पता नहीं है कहाँ है सेंटर, क्या है, ये सब हमें पहले से पता करना है. एंड वी शुड नॉट बी एनी डिले दैट. वी शुड रीच इन टाइम, काम, कंपोज, एंड ऑन द एग्जाम डे मेक अ प्रॉमिस विथ यू इन द मॉर्निंग दैट यू आर नॉट गोइंग टू टॉक विथ एनी वन टिल यू विल कम फ्रॉम द फाइनल राउंड ऑफ द एग्जाम, मीन्स द सेकेंड राउंड ऑफ द एग्जाम. उससे पहले हम किसी से कोई बात ही नहीं करेंगे, चाहे ब्रेक हो चाहे कोई हो, किसी से भी नहीं. नाइदर रिलेटिव नोर पेरेंट्स, किसी से कोई बात नहीं करेंगे, राइट. During the break, what you need to do is you will take a light food. Do not take heavy food, क्योंकि अगर heavy food लेते हैं, so hot summer days, heavy food
more blood supply will go towards stomach, that we do not want. So do not take heavy meal in the break. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अवॉइड टॉकिंग विद एनीवन. नहीं तो क्या होता है कि दोनों तुम्हारे जो फ्रेंड्स होंगे, जैसे तुम्हारे फ्रेंड एग्जाम सेंटर पे दोनों सोच के गए यार हम एग्जाम में क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे ब्रेक के अंदर. होता क्या है कि सडनली एक स्पार्क आता है एंड यू स्टार्ट डिस्कसिंग ऑल दिस क्वेश्चन. अरे तेने क्या लगा, अरे तेने क्या लगा, इसका ये, एंड वी गेट डिप्रेस. सो ये हमें उससे दूरी बना रखनी है. हाउ मच क्लोज यू आर, हम 2 घंटे बाद क्लोज हो जाएंगे, वो कहीं नहीं जा रहा है, कहीं नहीं जा रही है, 2 घंटे बाद बात कर लेंगे, बट उस ब्रेक में हम उसके पास भी नहीं जाएंगे. यस, दिस इज वॉट यू हैव टू डू. नाउ अभी क्या होगा कि एग्जाम में जब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो कभी कभी ऐसा आएगा कि हमें क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो हमें उसकी चिंता नहीं करनी है यार. हमें 300 में से वी हैव लिबर्टी ऑफ 150 क्वेश्चन, राइट. देयर विल बी सम डिफिकल्ट क्वेश्चन, 10, 20, 30, 40 डिफिकल्ट क्वेश्चन विल बी देयर. वी डू नॉट हैव टू वरी अबाउट दैट. सी, इट इज नॉट द difficult question that is going to decide the result, it is the easy question that is going to decide the result. Irrespective whatever is the difficulty level, कि कितना ही डिफिकल्ट एग्जाम आएगा, 300 में से 120 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो तुम्हें आते होंगे. ये तो तुम भी मानते हो कि 300 में से 120 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो हमें आते हैं या इजी होते हैं. अब मैं ये कहता हूँ कि अगर यार 120 में से अगर तुमने 105 भी सही कर दी, उस इजी क्वेश्चन को तुमने बार बार पढ़ा जो तुम्हें आता था, और तुमने वो सिली मिस्टेक्स नहीं की, और 120 जो तुम्हें आते थे, मैं उसी में से कह रहा हूँ, यू जस्ट करेक्टेड 105. अगर 120 में से 105 करेक्ट हो गए जो तुम्हें आते थे उसमें से, द रिमेनिंग 180 क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी यू विल करेक्ट 45 विथ ईच ऑप्शन, द प्रोबेबिलिटी इज 45 एंड दिस इज व्हाट वी वांट. 105 प्लस 45, 150 मार्क्स, राइट. सो जो इजी क्वेश्चन है हमें एग्जाम में उसको ज़्यादा टाइम देना है और उसको मेक श्योर करना है कि ये सही ही हो. जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसको 10 बार भी पढ़ोगे ना तो आंसर कूद के बाहर नहीं आने वाला है, वो गलत है, गलत ही होने वाला है, राइट. सो हमें इजी क्वेश्चन को ज़्यादा अटेंशन देना है. ज़्यादा हम क्या करते हैं, जैसे इजी क्वेश्चन दिखता है, अरे ये तो आता है, इसका आंसर यही, और हम सडनली दूसरे क्वेश्चन पर चले जाते हैं और वी हैव मेड ए मिस्टेक देयर. दिस इज व्हाट वी हैव टू अवॉइड. एंड ये एग्जाम में बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करता है, राइट. तो हमें इजी क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ना है, लेकिन मेक श्योर करना है कि ये करेक्ट होगा. द नेक्स्ट थिंग इज, the next and what I can say is the last thing is to control your nerves. If you maintain, you will keep calm, keep the things simple, calm and composed for the next 5 hours in the exam, you are going to clear. बहुत हैसल पैसल नहीं करना है कि यार अरे मैंने ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, सब पढ़ा है. The morning 9 AM you should be in a state कि मुझे सब पढ़ा है, जितना पढ़ना चाहिए था उतना सब पढ़ा है, and I am going to clear this exam and 100% you will clear. So guys, best of luck. And for if you have any query regarding the exam for next 30 days, how you should plan, which subject you are weak, what you should do, you can write me on this number, you can call me on this number. We'll try to solve as much as possible. But ये जो 30 दिन है, that is going to decide each and everything. So best of luck guys. So we'll see you after the exam. We'll catch up you when the result will come with the flying colors. You will come out. Hope for that, and best of luck again. Thank you.